नमस्कार मित्रों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ माननीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव जी हैं। मंत्री जी, आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही हमारे साथ सचिव आयुष श्री वैद्य राजेश कोटेचा जी हैं। विशेष कार्याधिकारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्री पीएन रंजीत कुमार जी और संयुक्त सचिव आयुष सुश्री मोनालिसा दास जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रारूप इस प्रकार होगा। सबसे पहले विशेष कार्याधिकारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्री पीएन रंजीत कुमार जी एक प्रेजेंटेशन देंगे, पीपीटी, और उसके बाद माननीय मंत्री जी मीडिया को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रश्न मीडिया से लिए जाएंगे। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपना नाम और अपने संस्थान का परिचय प्रश्न पूछने के पहले अवश्य दें। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री रंजीत कुमार जी से, आप पीपीटी प्रस्तुत करें। Thank you, sir. Honorable Ayush Minister, respected Secretary and Principal DG, my colleague Joint Secretary Ayush, esteemed friends from the media who have come here, we will quickly get into a presentation. The purpose of this presentation is to give a kind of a wrap-up or a snapshot of what all are planned and kind of set the tone for the address by the Honorable Minister, which will follow, for which you are eagerly waiting. So I will not take much time with the presentation. So most of the media personnel who have come here are familiar with International Day of Yoga. Many of you are yoga regulars, but still for the sake of completeness, we are starting with the genesis of IDY, how it came to where it is, and then we will get into what is currently happening, as well as what is planned in the remaining days. As is well known, the institution of International Day of Yoga, it arose out of the vision of the Honorable Prime Minister, very enthusiastically supported by the international community, with the highest ever endorsement for a UN resolution in the UN. It was passed in 2014. उसके बाद 6 महीने में ये establish हो गया. After the passing of the resolution, in 6 months, the first IDY was held. This has a purpose. It is not a ritual. It is not just a mere ceremony. The purpose is that yoga, जिसका जो time-tested rewards हैं, take it to the people, not just in India, across the world. This is the purpose. It is essentially the United Nations, their purpose is that yoga का जो public health benefits हो सकता है, the benefits in which are possible in preventive health, mental and physical well-being, take that to the people all over the world. And it has also been an occasion for India, हमारा जो soft power है, that has been enhanced because of this, because of the entire world accepting IDY with open arms. Any discussion on IDY will be incomplete without a mention of Common Yoga Protocol. International Day of Yoga, harmonious demonstration of yoga is the centerpiece. It is this harmonious demonstration which inspires people. उसके लिए एक vehicle चाहिए था. That came in the nature of Common Yoga Protocol. 45 minutes का drill है. It includes the different aspects of yoga, the different parts like asanas. It starts with kriyas, then asanas, then pranayam, and finally dhyan. And incidentally, it's a matter of pride for India that today Common Yoga Protocol is the most widely practiced yoga drill in the entire world, thanks to IDY and also thanks to the inherent strength of this protocol. Quickly, 10 साल में हमारा जो national events जो है, which is led by the Prime Minister, the journey of the national events started with Delhi in 2015. Many of the esteemed media members, you covered, you have been with us since
2015. Then we moved to Chandigarh, then to Lucknow, then to Dehradun. अभी तक जो सबसे बड़ा in terms of participation वो देहरादून रहा है. Then Ranchi, 2 साल, those difficult lockdown years, virtual था. Then Mysore, 2023, Jabalpur, which was led by the Honorable Vice President because the PM took part in the event in New York. And last year, Srinagar. This is the journey of the national event. इस बार का national event के बारे में Honorable Minister will be giving you the details in his speech. This is a completion of a decade. तो इस साल Ministry under the guidance of Honorable Minister, we brought out a elaborate program. ये program का the important thing was segmentation. हर segment of population और every segment of institutions. उनके लिए हम अलग अलग कुछ ना कुछ separate program tailored to that segment. ऐसे segmentation किया था. Segmentation के साथ थोड़ा standardization भी हो गया. So this also, I believe the Honorable Minister may be elaborating on that. And we have to speak about the theme, this year's theme, which is Yoga for One Earth, One Health. Yoga का जो inherent unity है, it covers the entire planet, unity of human being with the planet and with the nature. That is captured in this theme. और मैंने जो बताया अभी, segmented programs. All these segmented programs together, we call them signature events. Together they elaborate this theme. अभी तक जो major events हुआ है उसका थोड़ा सा एक visual capture. Firstly, the ministry under the leadership of the Honorable Minister, we have converted Yoga Day. अभी एक दिन का program नहीं है. Yoga Day is actually a season of 100 days. So this was inaugurated on 13th of March, as you can see in Vigyan Bhavan. Then another landmark was when it was 75 days to IDY. That was held on 7th of April in Bhubaneswar. उसमें एक जो event था Harit Yoga, that also was launched by the Honorable Minister. Then another important landmark event was held in Nasik, and the last one was held in Pondicherry. So the attempt of Honorable Minister was to take this to different parts of the country, these big events. इसके वजह से एक buzz create हो गया है in every region. अभी तक जो events है उसका एक summary. Around 700 events, ministry, other government departments and government bodies. Together we have supported or organized 700 events so far. This year, I mean I'm talking of जो season अभी जो मैंने बताया 100 days season, in that 700 events have been organized. इसमें one interesting thing is the missions, Indian embassies abroad, in 60 countries they have organized 130 events. Or media में, some of you would have already seen, there have been podcasts which the Honorable Minister launched on his social media. We are also bringing out newsletters. And there is something called a daily video capture of 2 minutes, IDY Diaries. So that is also coming to many of you. And if you leave the numbers, we will send it to everyone. We can send it on WhatsApp. The other thing is all ministries and departments, they have taken IDY as their own program, and they are all supporting this through activities as well as through media. So you'll be happy to see that अभी तक जो March 13th से शुरू हुआ, 13th से शुरू हुआ. So these are the countries where, like I said, 60 countries, कुछ ना कुछ योगा का event through Indian missions as well as through yoga organizations, it is happening. So there is an awareness of yoga all around the world, as you can see from the map itself. And the main IDY national event, which is going to happen, where the Honorable PM will be leading the event. तो आज का curtain raiser उसके बारे में है mainly. So the Honorable Minister will give you the highlights of that. Just to get a flavor, we have given this press cutting. Now the focus has shifted to the main event, Yog Sangam. We are calling it Yog Sangam. That is happening on 21st. So ministry का target है, when the Honorable Prime Minister addresses the nation at 6:30 in Visakhapatnam, where the main event will be. Along with that,
In 1 lakh locations, yoga events will be happening. जैसे मैंने बताया, all of them will be based on common yoga protocol. And there is also a tracking mechanism this year where all are requested to register. So ये जो tracking मैंने बताया 65,000 है, these are the states where mostly activities have taken place, leading states, and it is happening everywhere, all over the country. राजस्थान में 65,000 अभी आज का नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस, ये जो 1 लाख टारगेट मैंने बताया, सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट 1 लाख विल बी एक्सीडेड. सो इसका इम्पोर्टेंस ये है, द इम्पोर्टेंस इज दैट दीज आर नंबर ऑफ इवेंट्स. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स. हर इवेंट में देर विल बी, इट कैन बी 50, 100, 1000. So through these events which are registered and which are tracked through the ministry's portal, we will get to know हर village में, हर शहर में who are the yoga givers, who are the stakeholders of yoga. That track is mentioned. Actually this number 65,000 ये एक revolution से कम नहीं है. This is a yoga revolution. It started slowly and जैसे हम 21st के पास जा रहे हैं, इसका pace has picked up. I'll just give an example. In the last 24 hours, 10,000 organizers in different parts have registered because we are tracking it on the internet. 10,000 in the last 24 hours, it's going to pick up. So this is a revolution. 10,000 का मतलब है जैसे हम लोग we are sitting and talking. Every minute, 7 organizers are registering. So this is picking up. It's kind of आज का term use किया तो this is becoming viral. So we request your support to take this message to the people so that more and more events are, when people are inspired to organize more and more events. These are some of the corporate houses which are joining, which is heartening. Again, one of Honorable Minister's strategy was that we should reach out to corporate houses. So LIC, Tata, Ernst & Young, then a lot of public sector companies, they have all joined. And you will be also interested to know that some IITs, IIMs, IIITs, they have all joined the effort. We just wanted to quickly tell you what is happening in Delhi. 111 locations, this event will be happening. Some of the iconic places like Red Fort, Kartavya Path, Lodi Garden, and the municipal bodies have taken the lead. NDMC, DDA, MCD, ASI, Archaeological Survey, and the ministry as well as the National Yoga Institute, the Morarji Desai National Institute, we provide technical support as well as material support to these institutions. And a lot of small and lesser known private institutions are also doing this, and we are happy to support them as well. So that's a quick summary. धन्यवाद रंजीत कुमार जी. अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीडिया को संबोधित करें. नमस्कार. आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए कर्टेन रीजन के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे आयुष मंत्रालय के सचिव श्री राजेश कोटेचा जी, प्रधान महानिदेशक PIB, विशेष कार्य अधिकारी IDY, संयुक्त सचिव आयुष और यहाँ पर उपस्थित मीडिया के मेरे सभी प्रिय मित्रों, देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार. आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महत्वपूर्ण कर्टेन रेंजर कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. यह एक विशेष अवसर है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक सफल दशक पूरा होने का प्रतीक है. आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि इस कार्यक्रम को शानदार और इतने यादगार तरीके से मनाया जाए जो एक तरह से वैश्विक शांति, कल्याण और सद्भाव की ओर हमारी सामूहिक यात्रा का प्रतीक हो. साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल IDY के आयोजन की एक थीम होती है. थीम के इर्द गिर्द ही गतिविधियों का योजना बनाई जाती है.
IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस योग जैसा कि घोषणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये की है, 30 मार्च को अपने मन की बात में संबोधन की थी। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। जैसा कि हम जानते हैं, हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण समारोह में से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगाभ्यास प्रदर्शन का राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2025 को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी सरकार के सहयोगी आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्राबाबू नायडू गारू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस अवसर के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं और पूरे राज्य में मजबूत और दीर्घकालीन योग संस्कृति बनाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने योग आंध्रा अभियान शुरू किया है, जो एक सर्वथा अभूतपूर्व प्रयास है। इस प्रयास का उद्देश्य 10 लाख नियमित योग अभ्यासियों का एक समूह बनाना है, जो असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 1 दशक पूरा होने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा को याद करने का भी अवसर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसकी शुरुआत 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अत्यंत दूरदर्शी प्रस्ताव के जोरदार अनुमोदन के साथ हुई थी। भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा और विरासत में निहित इस प्रस्ताव को 175 से ज़्यादा सदस्य देशों का अभूतपूर्व रिकॉर्ड समर्थन मिला था। विशाखापत्तनम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधित्व द्वारा उत्पन्न दृष्टिकोण की शानदार अभिव्यक्ति होगा। साथियों, इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योग की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है। ये अलग अलग गतिविधियां थी जो आबादी के विभिन्न वर्गों के अनुकूल थी। इसमें शामिल है योग बंधन, जो 10 भागीदार देशों के साथ एक सहयोगी कार्यक्रम है, जिसमें योग हस्तियों का भारत दौरा शामिल है। दूसरा है योग कनेक्ट, एक वैश्विक सम्मेलन है जिसमें प्रमुख योग गुरु और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल है। मैं मीडिया के मित्रों से इसी 14 जून को विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भाग लेने और योग के संदेश को बढ़ावा देने का भी अनुरोध करता हूँ। हरित योग एक स्थिरता केंद्रित पहल है, जो योग को वृक्षारोपण के साथ जोड़कर पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ जोड़ती है। योग अनप्लग्ड एक ऐसी गतिविधि है जो युवाओं की भागीदारी को खास तौर से लक्षित करती है। योग समावेश विशेष ज़रूरतों वाले विशेष समूहों के लिए एक समावेशी पहल है। योग प्रभाव हमारे समाज में योग के प्रभाव का अध्ययन है, जो पिछले दशक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पालन के प्रभाव का आकलन करता है। इसकी एक रिपोर्ट हम जल्द ही जारी करेंगे। योग महाकुंभ, संयोग और योग पार्क व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने, सभी के लिए सुलभ योग को बढ़ावा देने, सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभों के लिए योग का उपयोग वर्ष पर्यंत करने के लिए सरकार और उद्योग जगत ने मिलकर 1000 योग पार्क विकसित करने के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम बनाया है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि 21 जून से पहले पूरे भारत में कई काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। इनमें लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी रही।
इनमें प्रमुख थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 100 दिन पूर्व यानी कि 13 मार्च को नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 100 दिनों की गतिविधियों की शुरुआत की। 7 अप्रैल को भुवनेश्वर में 75 दिन पहले वाला कार्यक्रम हो गया, उसमें काउंटडाउन समारोह भी हुआ। और 2 मई को महाराष्ट्र में नासिक में 50 दिन पूर्व काउंटडाउन समारोह हुआ। 27 मई को पांडिचेरी में 25 दिन पूर्व का काउंटडाउन कार्यक्रम हो चुका है। यह देखकर खुशी हो रही कि पूरे भारत में संगठन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के तहत एकजुट हो रहे हैं, ताकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और वैश्विक सद्भाव के लिए योग के जरिए वसुंधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को एक ऐसा यादगार कार्यक्रम बनाने के सरकार के इस प्रयास में शामिल हो जो लोगों को योग को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करे। मुझे विश्वास है कि आप अपने मीडिया कवरेज के माध्यम से एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देंगे। योग केवल आसन और प्राणायाम का अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह हमें अनुशासन, संयम और सकारात्मकता सिखाता है। मुझे यकीन है कि आपके निरंतर समर्थन और सहयोग से इस वर्ष 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से संबंधित अपने सभी लक्ष्यों को शानदार तरीके से प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय योग। धन्यवाद सर। अब मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा कि एक एक करके अपना प्रश्न पूछें। 266 सर मैं हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है। मैं श्रीकांत भाटिया हूँ सर, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर है मेरा। सर आपने बताया, शायद मैं सुन पाया कि 60 अन्य देशों में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इज आई एम करेक्ट सर? 60 कंट्रीज। तो जब योग के लिए रेजोल्यूशन साइन हुआ 175 कंट्रीज थी आपने बताया, तो ये कंट्रीज कम क्यों हो गई? सर अभी तक हुआ है, मेन कार्यक्रम क्या अभी तक हुआ है, ये तो अभी तक हुआ है सर। एज ए प्री 60 देशों में इसलिए तो 170 सर 170 तो मेन कार्यक्रम करेंगे सर, अभी तक हो गया सर। अभी देखिए, पिछले साल का भी जो हमने अनुमान किया था, तो पिछले साल भी 170 से ज़्यादा देशों ने 21 जून को एक दिन मनाया था, और अभी बहुत सारे देशों में ये हो रहा है। अभी तक भी 60 देशों में से हमको वहाँ पर बड़े कार्यक्रम होने के लिए भी उनसे जानकारी प्राप्त हुई है, और निश्चित रूप से ये साल 170 से भी ज़्यादा देशों में 21 जून को जागतिक योग दिन हमारा मनाया जाएगा। थैंक यू। 45 माइक दीजिए। माइक पे पूछिए। हाँ बताएं। सर पीएम का कार्यक्रम बता दीजिए। 1 मिनट के बाद पीएम का कार्यक्रम, क्या उनका एड्रेस भी होगा, और वो प्रोटोकॉल कितने बजे शुरू होगा, कितने लोग वहाँ पे जुड़ेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मुख्य कार्यक्रम हो रहा है वो ये बारी से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहने वाले हैं। और उन्होंने जो हमें अभी तक जानकारी दी है कि एक साथ 5 लाख लोग वहाँ पर उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाले उस विशाखापत्तनम के कार्यक्रम में योग करने के लिए शामिल होंगे। वो कार्यक्रम जो है तो 5:30 बजे से लगभग शुरू हो जाता है, लोग आना भी शुरू हो जाते हैं उसके पहले से, और 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है, और 6:30 से 7:30 बजे तक हमारा योगा का जो मेन इवेंट होता है प्रधानमंत्री जी का, वो होता है। उसके बाद में कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद में कार्यक्रम समाप्त होता है। अनिल हांडा, अतुल भारत न्यूज़। सर इस इवेंट के टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बता दें, और ये बताएं कि अगर इसमें से कोई रेवेन्यू भी जनरेट होगा क्या? असल में ये प्रमुख कार्यक्रम राज्य सरकार आयोजित कर रही है, तो राज्य सरकार प्रमुख रूप से इस पर खर्च करेगी। और ये जो देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से हो रहे हैं, तो सभी व्यय जो है वो आयुष मंत्रालय नहीं कर रहा है।
राज्य सरकारें, अलग अलग मंत्रालय, ये सब मिल के कर रहे हैं। तो इसलिए ये होल ऑफ द गवर्नमेंट के का मतलब ये है कि हम सब लोग मिल के कर रहे हैं, अकेला आयुष मंत्रालय नहीं कर रहा है इसको। फिगर्स की कोई डेटा नहीं है सर? डेटा हम जब कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो हम इकट्ठा करके आपको दे देंगे। सर कोई रेवेन्यू मॉडल है इसमें? इसमें Will रेवेन्यू there be मॉडल any का income? जी सर, रेवेन्यू मॉडल का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है सर। ये देखिए, ये योग जो हम लोगों को कर रहे, तो हमारे प्रधानमंत्री का जो हेतु है कि हमारे देश के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, देश का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसमें रेवेन्यू जनरेट करने की बात नहीं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए योगा की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। अगर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसके फायदे तो सभी क्षेत्रों में होने वाले हैं। ये स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम है। धन्यवाद। 9। मैं हरीश उपाध्याय, रीडर्स मैसेंजर से। मेरा सवाल ये है सर कि 65,000 आपने अभी रजिस्ट्रेशन दिखाया, उसमें स्टेट भी डिस्प्ले की, उसमें यूपी नहीं था, जबकि यूपी में योगी हैं और डबल इंजन सरकार है, तो रजिस्ट्रेशन कम क्यों और उनमें उसमें क्यों नहीं आ पा रहा है? ये देखिए, अभी रजिस्ट्रेशन चालू है और उसमें जो बताए गए तो उसमें पूरे राज्यों के आंकड़े नहीं दिए गए। 4,000 से मैंने देखा कि 4,000 से ज़्यादा अभी तक जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए तो वो उतने सिर्फ हाईलाइट किए, और अभी हमको तो 1 लाख से ज़्यादा करने हैं। और लोग, आपको भी पता है कि अभी 21 जून को काफ़ी दिन बाकी है, अभी रजिस्ट्रेशन का माहौल और ज़्यादा होगा। हमने तो 1 लाख का टारगेट रखा है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उसमें आएंगे। यूपी से भी उसमें रजिस्ट्रेशन बहुत सारे बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन कम तो हुआ है। ये तो हमने 5-6 राज्यों का ही बताया कि 4,000 से ज़्यादा अब तक जो हुए उतने ही बताए वो, और उसकी मैंने टोटल मारा तो 40,000 से ही कम है। वैसे तो अभी तक 65,000 हो चुके हैं, उसमें यूपी के भी होंगे, यूपी के भी लगभग 4,000 के लगभग अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके। 280। सर, मैं प्रणब प्रखर हूँ विजन टीवी से। ये जानना था कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड कितने योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो योगा इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने फुल टाइम कोर्स किया है और प्रॉपर उनके पास डिग्री है? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो योगा नहीं भी करते हैं वो भी अपने आप को प्रशिक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास 2 इकोसिस्टम है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, दिल्ली में है, और वो योग के प्रशिक्षण का काम करते हैं। ऐसे हमारा पुणे में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है, वो भी योग के सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर होता है। बहुत सारी राज्य सरकार, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी योग के प्रशिक्षक के कोर्सेज देती है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी देती है। उसके सिवा एक योग सर्टिफिकेशन बोर्ड करके हमारे पास है एक्रेडिटेशन के लिए, जो अपस्किलिंग का उनका जो एग्जिस्टिंग उनके पास जो स्किल है उसको एक्रेडिट करने का इसमें मैकेनिज्म है। उसमें 6 लाख से ज़्यादा योग वॉलंटियर सर्टिफाई हुए हैं और 70,000 से ज़्यादा योग प्रशिक्षक सर्टिफाई हुए अलग अलग लेवल के। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और आपने देखा होगा, अभी एक थोड़ा प्रश्न आया था कि इसका रेवेन्यू मॉडल, एक्चुअली ये रेवेन्यू जनरेशन का इस तरीके का मॉडल है कि योग की इतनी सारी डिमांड है कि योग प्रशिक्षक, कोई अच्छे योग प्रशिक्षक मिलने के लिए उनको बहुत सारा क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट होता है, उनके लाइवलीहुड भी बढ़ा है। तो ये भी एक योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के माध्यम से हुआ है। इस साइड से 67। सर नमस्कार, मेरा नाम अमय साठे है। आई एम एडिटर ऑफ सरकारीटेल.com। सर, जब से अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ योगा का अनाउंसमेंट हुआ है, आप इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इसकी सफलता को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, योग जो है तो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने कई हजार साल पहले उस पर बहुत बड़ा अध्ययन किया, संशोधन किया होगा, और ये योगाभ्यास करके ये योग हमारे देश की धरोहर भी है। और हमारे मंत्री की भी, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही राय थी कि हमारा योगा जो हमारे देश की देन है तो पूरे दुनिया तक जाए और पूरे दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य के लिए उसका उपयोग हो। अभी जो तुमने जो अभी यहाँ पर सवाल पूछा है तो उसमें बाकी के सभी देशों में भी बहुत सारे देशों में लोग वहाँ पर सिर्फ 21 जून को योगा मनाते नहीं तो हर दिन अपने जीवन में योगा मना रहे हैं।
अभी कल हमने एक पिक्चर जो निकली थी हमारी 1-1.5 घंटे की निकाली हुई है, डबल क्या नाम था? हाँ, आयुर्वेद डबल हेलिक्स करके, और उसमें भी हमारा आयुर्वेद और आयुष के बारे में उन्होंने प्रमाणित कर दिया है। फॉरेन के लोगों के वो थे, इंग्लिश मीडियम में वो हमारी मुही थी, तो उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि योगा और आयुर्वेद में कितने अच्छे उपचार लोगों पर ढंग से हो सकते। तो योगा को बाहर के कंट्री में भी लोग अपना रहे, और इस साल प्रधानमंत्री के साथ में जो योगा हो रहा है तो लगभग 40 कंट्री के लोग वहाँ पर आने वाले उसी विशाखापट्टनम में। वाइजैक में आरके बीच ग्राउंड वाइजैक। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, 163 दिस साइड, प्रज्ञा जी। सर, आई एम प्रज्ञा फ्रॉम टाइम्स नाउ। यू सेड कि आप 40 कंट्री के लोग भी साथ में रहेंगे। किस टाइप, क्या डिप्लोमेट साथ होंगे और क्या नंबर रहेगा उनका? किस स्टेचर के लोग होंगे जो साथ में योगा करेंगे, प्लस कौन से आसन होंगे जो प्रधानमंत्री वहाँ करेंगे? ये देखो, प्रधानमंत्री जो करते हैं तो योगा का एक 45 मिनट का प्रोटोकॉल बना हुआ है, और वो प्रोटोकॉल में आसन दिए हुए हैं कि वो लगभग सभी लोग, जो नए लोग भी उसमें, हम आम आदमी को उसमें ज़्यादा शामिल करते हैं, तो जो पहले बारी में भी योगा करने के लिए वहाँ आता है तो वो भी आसानी से वो सभी आसन कर सकता है। तो ऐसे लगभग मेरे ख्याल से 19 या 20 आसन वो 45 मिनट के प्रोटोकॉल में, और वो जो हमारे योग के जो भी बड़े क्या बोलते हैं उनको, कि जो स्टडी लोग, बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े योगाचार्य है, उन्होंने ये प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री जी के कहने पर तैयार किया था, और वही प्रोटोकॉल वो 45 मिनट में प्रधानमंत्री भी करते हैं और उनके साथ में सभी लोग वो 45 मिनट में करते हैं। और ये बारी का जो हमने बताया कि हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, वहाँ के आयुष मंत्री, उनके आयुष विभाग, वो सबको हमने बताया कि जहाँ पर भी बड़े कार्यक्रम होंगे तो वो कार्यक्रम में वहाँ के सभी मंत्री भी, उनके एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी में या बड़े शहरों में वहाँ के विधायक, हमारे सभी सांसद, इनको भी हमने वैसा सूचित किया है कि आप भी उसमें उपस्थित रहे। एक वो कार्यक्रम पूरा प्रधानमंत्री का लाइव होता है सभी जगह पे। अगर स्क्रीन बड़े जहाँ पर कार्यक्रम होते 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार लोगों के, बड़े शहरों जैसे मुंबई, बड़े शहरों में, या डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे या ब्लॉक लेवल पे, तो वो स्क्रीन भी वहाँ पर लगेगा, तो प्रधानमंत्री का जो है वो वहाँ पर भी लाइव लोगों को दिखेगा, और सभी को लगेगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक साथ हमारे पूरे देश में उस दिन का योगा किया जाएगा। ये जो 40 कंट्री के बता दीजिए, बाहर से आ रहे जो जैसे प्रेजेंटेशन में बताया रंजीत कुमार जी ने कि 20 देशों से योग के जो स्टेक होल्डर्स है, बड़े योगाचार्य हैं, योग स्कूल के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर से वो आ रहे हैं। और इसके सिवाय बाकी जो भारतवर्ष में, अपने देश में जो विदेशी छात्र योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग संस्थाओं में हैं, उनको भी हम बुला रहे हैं। ऐसा करके 40 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर 40 देशों से प्रमुख कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ में प्रोटोकॉल के लिए रहना पड़ेगा, मैं भी विशाखापट्टनम में रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।